Hello everyone. Today we'll be starting a new chapter, that is accounting of banking companies. This chapter is relatively small. For particular chapters we have one or two questions practical. Some of the portion is theoretical only, and then in this particular video the chapter will get completed and we'll be discussing one theory question, one or two theory questions, and one or two practical questions. So basically in this particular chapter we are discussing accounting for banking companies. Again, like you must have seen till now, we are discussing accounting for companies. So that is according to Companies Act 2013. But here we are discussing specifically for banking companies. What's important in this topic is this: what are performing and non-performing assets, and this is on which our practical would be based. So let us start with the topic. So it's a small topic for our syllabus. For your convenience, I have given you the differences between what is the difference between a banking company and a non-banking company. Non-banking company means any other company than banking company. So basic differences given to you, like let me read out. It's very simple. Act, like I told you, banking company, if you will be preparing accounts, you are preparing as per Schedule 3rd of Banking Regulation Act 1949. And you know, if there is any other company, like we are preparing accounts, so we are preparing as per Schedule 3 of Companies Act 2013. So banking company का 1949 and non-banking company का 2013. Now if you are preparing, if you will be seeing the balance sheet of banking company, there are two major headings like capital and liabilities. And you know, for banking non-banking company, like we are preparing normal balance sheet, so our liability side heading is equities and liabilities. You know that balance sheet we have two formats of preparing: order of permanence and order of liquidity. In order of permanence, we first record all non-current assets and then current assets. And in order of liquidity, we first prefer to record current assets, then we record non-current assets. Like you must have seen till now, like in final accounts or something, which order of balance sheet we are following? We are following order of permanence, because first of all we are writing non-current assets, then we are writing current assets. So in case of banking company, we record assets in the order of liquidity. Liquidity means first of all we are writing current assets, then non-current assets. But in case of normal balance sheet, we are writing first non-current asset, then current asset. So that is permanence. Then assets and liabilities classification. In this, assets and liabilities are not classified into current and non-current. In this, assets and, like in normal balance sheet, we classify assets as current and non-current assets or non-current liabilities. There are, like we have prepared the balance sheet final accounts also. We can prepare as many as number of accounts as required. But in banking company, there are fixed 12 notes to accounts or schedules. But in normal balance sheet, there is no limit. You can prepare 7, 8, 9, 10, 11, 12, as much you want. Like in banking company, we generally write P&L as P&L account. But like in final accounts we discuss, we write P&L as statement of profit and loss. We are not making it any other account in this. And the last point, appropriation of profit, that is transfer to reserves, are shown in P&L account. Like this P&L account they are talking. But we in final accounts we discuss whatever reserves we are transferring and recording it under the heading reserves and surplus. So this is a basic question, generally theory question they ask. What is the difference between banking and non-banking company balance sheet? So this is the major difference. This is the balance sheet difference only. Now let us come on to the main part in this. Performing and non-performing assets. This has been defined under Schedule 9. But let us directly come on to the meaning of it. Again, important topic from theory perspective also and from practical perspective also. Again, performing or standard assets are basically those assets on which the bank is continuously receiving its interest payment and principal amount. That is, if a bank has given a loan to someone else, to the party, and the party is regularly paying the interest amount also and the principal payment also, so that is known as performing asset. Generally, if there is any deficiency or something for the time being, और वो फिर बाद में pay कर देता है, still it would be performing or standard asset.
तो इसके ट्रीटमेंट में कोई इतना डिफरेंस या इतनी डिफिकल्टी नहीं आता परफॉर्मिंग एसेट्स की. मेजर इज दिस, व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. लाइक यू मस्ट हैव सीन ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, आप देखते हैं कितने सारे बैंक्स के साथ फ्रॉड हुआ या बैंक्स में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी. एंड यू मस्ट हैव बीन अवेयर अबाउट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीएस बोलते हैं जिसको हम, ये लिखा हुआ. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मीन्स द एसेट्स ऑन विच द बैंक is not able to receive its principal payment as well as interest for a specified period of time. For example, generally अभी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, जनरली मैं आपको बता देता हूँ 90 डेज का टाइम होता है, 3 महीने. जैसे 3 महीने से आपकी इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू है, या 3 पेमेंट से आपने प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे किया, लोन का टाइम पीरियड खत्म हो गया, 3 महीने से ज्यादा हो गए, तो देन दोज एसेट्स वुड बी टर्म्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो एक होते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स और एक होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दैट इज स्टैंडर्ड एसेट्स और नॉन स्टैंडर्ड एसेट्स, यू कैन से एनीथिंग. बट हम उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मानेंगे कब, ये हमारे को कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में करते थे कि बिल परचेज कर आपने किसी के ऊपर बिल ड्रॉप किया था, आपने डिस्काउंट करवा लिया और 90 डेज से ज्यादा हो गए, आपका बिल रिन्यू या क्लियर नहीं हुआ, तो इन दैट केस दिस विल ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट. किसी से लोन लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट और पेमेंट नहीं दिया, टर्म लोन लिया किसी टाइम स्पेसिफाइड के लिए, 90 दिन से ज्यादा हो गए, आपने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं किया, इधर होली और पार्टली, इट वुड बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो जनरली आप चेक करेंगे 90 डेज का ही पाएगा सब में, 90 डेज से ज्यादा. कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको बैंक ने दी थी और जितना लिमिट दिया था 90 डेज से ज्यादा हो गया, आपने पेमेंट नहीं करा है, तो अगेन दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. जनरली आप सब नॉर्मली सब में चेक करेंगे, लाइक देर इज नो लिखा, दे हैव नो क्रेडिट्स इन द अकाउंट फॉर अ कॉन्टिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज. मतलब आपने बैंक से, अब जनरली इस केस में क्या होता है, आपने बैंक से लिमिट ले रखी थी और बैंक कहता है कि हम आपको 1 लाख की लिमिट दे देते हैं, और जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा हम अकाउंट से आपके निकाल लेंगे, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा आया ही नहीं, क्रेडिट ही नहीं हुआ, और आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिमिट से आप पैसा यूज कर रहे हो, 90 डेज से ज्यादा हो गया और आपके अकाउंट में कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आए, तो इस केस में भी आपका क्या ट्रीट कर लेंगे, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. इसका इन्होंने एक नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है. फर्दर एनी अमाउंट ड्यू टू बैंक अंडर क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवर ड्यू. फॉर एग्जांपल, मुझे बैंक ने सैंक्शन कर दिया था लिमिट 75 लाख का, कि आप 75 लाख का लोन ले सकते हो. मेरी ड्रॉइंग पावर जो थी 70 लाख की थी ड्रॉइंग पावर. सो इन दिस केस व्हाट हैपेंड इज 75 लाख की 70 लिमिट थी, मैं विड्रॉ 70 लाख कर सकता था, और मैंने अमाउंट आउटस्टैंडिंग कॉन्टिन्यूसली, मतलब मेरा 62 लाख का ऑन रेगुलर बेसिस, आप चेक कर सकते हैं, 3 महीने दिखाया हुआ इसमें, 62 लाख रुपीज का है. टोटल इंटरेस्ट उस पर 4,80,000 का बन गया, और टोटल क्रेडिट मतलब मेरे पास आज तक 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, आप चेक कर सकते हो. 62 प्लस 4,80,000, तो 66,80,000 के आसपास अमाउंट ड्यू है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हम मान सकते हैं कि मान लो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा, बट स्टिल द इंटरेस्ट इज मोर, debit is more, credit is less. So in this case it will be classified as non-performing asset, since the credit balance is less and the debit balance is high and over a period of 90 days. Then come on to agricultural advance. Again ये नाम आपको लिखे आएंगे क्वेश्चन में कि ये बिल परचेज के बारे में बोल रहा है, टर्म लोन के बारे में बोल रहा है, भी हम डिस्कस भी करेंगे. एग्रीकल्चर एडवांस के अंदर आप नॉर्मली नॉन परफॉर्मिंग एसेट जब मानते हो, अगर वो नॉर्मल क्रॉप है जिसकी ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है, तो 2 क्रॉप सीजन. लेकिन अगर कोई लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब जिसको उगने में ही बहुत टाइम लगता है, उसके लिए आपने अगर कोई लोन या एडवांस ले रखा है, तो उस केस में मोर देन अ ईयर. तो उस केस में क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स वुड बी क्रॉप्स हैविंग अ ड्यूरेशन ऑफ मोर देन 1 ईयर. Crops which are not long duration crops would be classified as short duration crops. तो basically they are talking about short duration crops only, लेकिन long duration crops का भी हुआ, तो in that case also there is a specified time which would be mentioned in the question. But otherwise if there is a short duration crops less than a year, तो 2 cropping season तक हम वेट करेंगे अगर आप इंटरेस्ट और अमाउंट नहीं पे कर पाए. So in that case we will be taking it as a non-performing assets. Then rest of the things you can read out. I can discuss 1 or 2 things here.
सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं कि बैंक आपको अपने एसेट्स और डेट को गिरवी रखवा के ओन और लोन इश्यू कर देता है. It means clubbing of debt, assets, and giving. Why the bank is doing this? Because bank is taking advance and giving loan to the public. So to increase the loan sanction limit, bank use securitization transaction. Securitization transaction का मतलब होता है combination of debt, assets. हम उनको गिरवी रखवा के और अमाउंट लेते हैं और उसको फिर हायर रेट पे आगे इंटरेस्ट के लिए दे देते हैं. तो अगर हमने ऐसे ही किसी को इंटरेस्ट के लिए दे रखा था पैसा और 90 डेज से ज्यादा हो गया, so again that would be a part of non performing assets. Rest is very simple. आपने कोई स्टेट गवर्नमेंट से एडवांस ले रखा तो 90 डेज. ठीक है. कंजोर्टियम एडवांस का भी सेम पॉइंट होता है. कंजोर्टियम मीन जैसे ग्रुप ऑफ बैंक से आपने लोन ले रखा है तो इंडिविजुअल बैंक की रिकवरी का भी सेम प्रोसीजर ही होगा इसके अंदर. जो मेन था मैं आपको बता देता हूँ, मेन हमारे यही थे इसके अंदर, ये बिल परचेज, टर्म लोन, कैश क्रेडिट, एग्रीकल्चर एडवांस भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन, जिसमें मतलब ये बेसिकली 90 डेज का जो क्राइटेरिया दिया वही है. ये आप डेट याद रखना और 5-6 पॉइंट्स याद रखना इसके. लाइक समटाइम द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, सो यू कैन टेल 5-6 कैटेगरीज. और आप इसमें चेक भी कर सकते हो, जनरली मैं आपको 90 डेज बोल ही रहा हूँ तो आप इसमें भी चेक कर सकते हो. कोई और अकाउंट होगा किसी भी तरीके का, उसमें भी अगर पेमेंट 90 डेज से ज्यादा की ड्यू होगी तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. आपने किसी स्टाफ को एडवांस दे रखा है, एडवांस अगेंस्ट सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स, कोई मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, LIC के अगेंस्ट आपने कोई इंटरेस्ट ले रखा है, सो इन दैट केस या तो टाइम लिमिट गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो नॉर्मली टेक इट एज 90 डेज होंगे. जैसे आप इसमें चेक कर सकते हो, अगर हमने एग्जिम बैंक से एडवांस ले रखा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से, सच एडवांसेस मे नॉट बी ट्रीटेड एज NP टू द एक्सटेंट पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बाय द बैंक फ्रॉम एग्जिम बैंक. बैलेंस शुड बी ट्रीटेड, मतलब जितना मिल गया वो परफॉर्मिंग एसेट होगा, जितना नहीं मिला वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा, रिलेटेड टू कंडीशन सेटिस्फाइड. तो बेसिकली 90 डेज वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके. मेन पॉइंट देखिए आपका ये है जो हमारे को प्रैक्टिकल में हेल्प करता है. अभी हमने डिस्कस किया वी हैव परफॉर्मिंग एसेट्स. परफॉर्मिंग एसेट्स में कोई कैटेगरी नहीं है, क्योंकि अगर परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से हो गए, ये सारे एसेट भी परफॉर्मिंग एसेट हो सकते हैं. मान लो बिल परचेज में आपने 90 डेज से पहले पेमेंट कर दी तो वो परफॉर्मिंग एसेट है. अगर 90 डेज से ज्यादा हो गए तो वो नॉन परफॉर्मिंग बन गया ना. तो कैटेगरीज वुड बी सेम ओनली, बट इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंस कैसे होता है, इसका डिफरेंस सिर्फ यही है कि ये जो मेन लाइन लिखी हुई है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, दिस बेसिकली दिस लाइन, income on non-performing asset is not recognized on accrual basis. It shall be treated as income only when it is actually received. तो मतलब ये होगा, देखो परफॉर्मिंग एसेट, ये होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट. परफॉर्मिंग एसेट हुआ तो हम एक्रूअल बेसिस फॉलो करेंगे, एक्रूअल बेसिस मतलब अर्नड. लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट हुआ तो हम उसमें कैश बेसिस मतलब जितना हमारे को मिल चुका, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग हो सकता है मैं मान रहा हूँ कि किसी से मैंने पैसे लेने 15,000 रुपए और मुझे डाउटफुल है वो देगा नहीं, नॉन परफॉर्मिंग है, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक सिर्फ उसके 5,000 आए हैं 15,000 में से, तो मैं उसके 5,000 ही कंसिडर करूंगा उस केस में. मतलब एज आई विल बी कंसिडरिंग ओनली 5,000 बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग इनकम. लेकिन मान लीजिए मैंने कहीं और सर्विसेज दी तो उसकी पेमेंट मेरे को रेगुलर मिलती रहती है, तो इन दैट केस आई विल फॉलो एक्रूअल बेसिस, बट इन दिस केस आई विल बी फॉलोइंग कैश बेसिस. तो परफॉर्मिंग एसेट्स को हम एक्रूअल बेसिस पे फॉलो करेंगे और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हम इंटरेस्ट रिसीव पे फॉलो करेंगे. सिंपल पॉइंट है, कोई ज्यादा वो नहीं है. कुछ नहीं लिखा होगा डेज के बारे में तो वी विल अज्यूम कि 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं. यू कैन चेक आउट हेयर, सिंपल क्वेश्चन इज गिवन टू यू. गिवन बिलो आर द इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ऑफ कमर्शियल बैंक, टर्म लोन 90 डेज का ही था. परफॉर्मिंग एसेट्स में एक्रूअल कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया, अर्नड. और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में रिसीव वाला कौन सा पॉइंट है, कैश रिसीव वाला, तो इंटरेस्ट रिसीव, उसमें अर्न नहीं कैलकुलेट करते. तो मैं कहता हूँ टर्म लोन से मेरी कितनी, ये कह रहे हैं फाइंड आउट द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर दिस ईयर. तो टर्म लोन से मैं इनकम निकालूंगा तो परफॉर्मिंग एसेट्स में मैं कौन सा लूंगा, अर्न पोर्शन एक्रूअल के हिसाब से. और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में मेरे को जितना पैसा एक्चुअल में रिसीव हो चुका है, तो हमारी टर्म लोन से इनकम आप चेक कर सकते हैं कितनी आएगी, 120 + 5, तो 125. यू कैन चेक आउट.
क्योंकि देखो यहाँ भी लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन परफॉर्मिंग एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूवल बेसिस. एक्रूवल मींस अर्न्ड. नॉन परफॉर्मिंग शुड बी कैश बेसिस, व्हिच आई वाज टेलिंग यू. सेकंड सेम सेम तीनों में सेम रहेगा. कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट. परफॉर्मिंग एसेट्स का अर्न कितना है 750 और नॉन परफॉर्मिंग का रिसीव कितना है 12. तो 750 प्लस 12. तो यू कैन चेक आउट 750 प्लस 12. बिल्स परचेज सेम 150 and 20. So again the same point 120 150 plus 20 170. तो टोटल इनकम आपकी पूरे साल की बैंक की कितनी बनी 1057 lakhs. इन lakhs लिखा हुआ है क्वेश्चन. ये छोटा सा क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाता है आपका. बट जो हमने बाकी पढ़ा है वो आप सारे पॉइंट्स पर रीड आउट कर लेना. इसमें 3 पॉइंट दे रखे थे. जनरली 3 या 4 पॉइंट ही आते हैं इसमें. नाउ ये क्वेश्चन का प्रैक्टिकल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो नेक्स्ट पोर्शन में डिस्कस करूं, बट इसका थ्योरेटिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है. फिर भी मैंने एक प्रोविजन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, बट एक्सपेक्टेशन कम है उसका प्रैक्टिकल आने की. बट 2 ही क्वेश्चन है तो अब मैं चाहता हूं दोनों करके जाना. नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे हैव क्लासिफाइड द लोन एसेट्स, जो आपके एसेट्स होते हैं, इनटू 4 पॉइंट्स और 4 प्रोविजन के बेसिस पे कैलकुलेट किया है. वो कहते हैं कि हमारे पास एसेट्स हैं जिसके ब्याज पर हमने लोन वगैरह दे रखा है, तो हम कब उसको मानेंगे. स्टैंडर्ड एसेट अभी आपने पढ़ा, स्टैंडर्ड एसेट हम परफॉर्मिंग एसेट को बोलते हैं. तो स्टैंडर्ड एसेट इज वन विच इज नॉट नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क. कोई नॉर्मल रिस्क से ज्यादा नहीं है. जो नॉर्मल रिस्क तो हर चीज में होता है, तो नॉर्मल रिस्क होगा, तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है. सब स्टैंडर्ड एसेट कब होगा, जब वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट तब माना जाएगा आर दोज एसेट्स विच हैव बीन क्लासिफाइड नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ्स. मतलब 3 महीने से ऊपर हो गए तो नॉन परफॉर्मिंग तो वो वैसे बन गया, लेकिन अभी नॉन परफॉर्मिंग की भी कैटेगरीज आ गई. तो अगर वो 12 महीने से ज्यादा हो गया होगा, सो दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ, सॉरी 12 महीने से कम है, 3 मंथ से ज्यादा और 12 मंथ से कम, तो वो होगा सब स्टैंडर्ड एसेट. डाउटफुल एसेट कब होगा, जब कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट 12 महीने से ज्यादा की लाइफ हो गई तो वो डाउटफुल एसेट हो जाएगा. डाउटफुल एसेट. सब स्टैंडर्ड आई एम स्टिल रिपीटिंग, जनरली 3 महीने से ज्यादा और 12 महीने से कम. और डाउटफुल एसेट मीन जब 12 महीने से ज्यादा हो गया तो वो डाउटफुल एसेट बन गया. लॉस एसेट कब होगा, जब बैंक के जो ऑडिटर्स होते हैं वो कहते हैं कि ये अमाउंट अब मिलेगा ही नहीं. इट मीन्स दिस द वैल्यू ऑफ दिस एसेट इज नाउ बिकम 0. तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस एसेट. आप अगर 10 ईयर उठा के देखेंगे तो उसमें एक तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, और कई बार ये थ्योरी क्वेश्चन पूछा हुआ है किस. और जनरली अगर ये थ्योरी क्वेश्चन 7 मार्क्स का भी आ जाएगा तो सेम ही, आप इससे पहले बस सिर्फ वो लिखेंगे इन परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद आप ये 4 कैटेगरी डिवाइड कर देंगे. स्टिल रिपीटिंग, स्टैंडर्ड एसेट हमारा परफॉर्मिंग एसेट होता है. सब स्टैंडर्ड एसेट 3 महीने से ज्यादा 12 महीने से कम. डाउटफुल एसेट 12 महीने से ज्यादा की टाइम हो गया, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला नहीं. लॉस एसेट मीन जब आपके कंपनी के ओनर्स जो ऑडिटर्स हैं, ओनर्स हैं, उन्होंने बोल दिया कि एसेट हमारा लॉस बन गया, इस पे आपको कोई भी पैसा रिकवर नहीं हो सकता. तो इनके प्रोविजंस हैं. अगेन इतना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इसको, छोटा सा ही पोर्शन है. स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड मतलब परफॉर्मिंग एसेट. देखो अगर एग्रीकल्चर या स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है तो आप उसके ऊपर प्रोविजन 0.25 का बना सकते हो. एडवांसेस तो कमर्शियल रियल एस्टेट वालों को दे रखा है तो 1% का. कुछ नहीं दे रखा तो जनरली 0.40. अगर मान लीजिए सिंपल स्टैंडर्ड एसेट लिखा हुआ है, ये 3 कैटेगरी नहीं दे रखी, तो आप नॉर्मल मानेंगे 0.40. सब स्टैंडर्ड एसेट 15%, 25%, 20%. सिक्योर्ड हुआ तो 15%, अनसिक्योर्ड पोर्शन हुआ तो 25%, अनसिक्योर्ड पोर्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स तो 20%. तो इसका मतलब 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं और 12 महीने से कम तो सब स्टैंडर्ड एसेट. डाउटफुल 12 महीने से ज्यादा हो गए. देखो डाउटफुल मतलब 12 महीने से ज्यादा होगी, पेमेंट आई नहीं और कोई सिक्योर्ड एसेट से बैक नहीं किया हुआ, तो उस केस में 100%. अगर आपने सिक्योर्ड पोर्शन मतलब किसी ने लोन ले रखा और आपने उसकी सिक्योरिटी रखी हुई है, इफ दे आर कंसिडर अ डाउटफुल अप टू 1 ईयर, मतलब 12 महीने तक की है तो 25%. 12 महीने मीन अप टू 1 ईयर.
1 to 3 years होगा तो 40%, मोर देन 3 years हुआ तो 100%, और लॉस एसेट के केस में सीधा 100%। सिंस इसमें देखिए लिखा हुआ है, सिंस नो बैंक इज लाइकली टू एक्सटेंड एनी लोन और एडवांसेज विदाउट एडिक्वेट सिक्योरिटी। जनरली हम ये कहते हैं अगर बैंक आपको लोन देता है तो बैंक आपसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखवाता है। इट इज प्रूडेंट टू एज्यूम इन द क्वेश्चन दैट इवन इन केस ऑफ सबस्टैंडर्ड और डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट द सेम आर सिक्योर्ड अनलेस द क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन। मतलब अगर वो मेंशन नहीं करते कुछ भी, उन्होंने मान लीजिए डाउटफुल एसेट में लिख दिया तो वो कह रहे हैं आप उसको सिक्योर मानेंगे। ठीक है, तो जनरली एक बार परसेंटेज ये याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रखना। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। लाइक सिंपल सा पोर्शन है, ये क्वेश्चन छोटा सा दिया हुआ है। वाइल क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अ कमर्शियल बैंक हैज इट्स एडवांसेज, इन्होंने एडवांस दे रखा है। अब देखिए स्टैंडर्ड एसेट, मैं आपको भी दिखा देता हूँ परसेंटेज दोबारा। स्टैंडर्ड एसेट 16,000 लाख, तो हमने 16 लाख लिखा। मैंने ना ये एग्रीकल्चर के लिए है और ना ही कमर्शियल के लिए, तो मैंने बोला था किसी और कुछ भी होगा, सिर्फ स्टैंडर्ड एसेट लिखा, तो हम कितना प्रोविजन क्रिएट करेंगे 0.40। तो आपने क्या करा, 16 लाख का 0.40 निकाल दिया तो 64 लाख हो गया। अब आपने चेक करा सब स्टैंडर्ड एसेट में सिक्योर्ड हुआ तो 15%, अनसिक्योर्ड हुआ तो 25%। तो सिंपल क्वेश्चन में आपको दे रखा है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड 1000 दे रखा है तो आप चेक कर सकते हैं 1000, तो 1000 का 15% 150, अनसिक्योर्ड 300 का 25% 75। डाउटफुल एसेट्स में भी आपने देखा था, डाउटफुल एसेट्स में इसकी परसेंटेज मैंने आपको बताई दी थी। डाउटफुल एसेट की 25% अगर 1 साल तक के लिए, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं अनसिक्योर्ड है तो, और अनसिक्योर्ड नहीं होगा तो उन्होंने बोला था आप सिक्योर्ड ही मानोगे। 25%, 40% 1 से 3 साल के लिए, और 3 साल से ज्यादा होगा तो 100%, और लॉस एसेट का भी 100% है। तो इन्होंने कुछ नहीं करा, आप चेक कीजिए अप टू 1 ईयर डाउटफुल एसेट 700 का, तो इन्होंने कितना परसेंट निकाला 25%। 1 to 3 years का 40%, तो 400 को 40% 160। 3 साल से ज्यादा हो गए तो ऑटोमेटिकली वो 100% हो जाएगा, तो 200 का 100% मीन 200। लॉस एसेट्स 500, तो 500 का 100%। तो ये प्रोविजन क्रिएट किया, प्रोविजन मतलब हमारा इतना पैसा जो डाउटफुल है। तो सी इट इज एज्यूम दैट डाउटफुल डेट्स आर सिक्योर्ड। अभी मैंने आपको बताया अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा, इफ नॉट 100% प्रोविजन हैज टू बी मेड ऑन सच डेट्स। तो बैंकिंग कंपनी का जो हमारा बीकॉम के हिसाब से सिलेबस था वो इतना ही था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग कंपनी, देन परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं ये आपको मैंने यहाँ बता दिया। देन इसके ऊपर प्रैक्टिकल की परफॉर्मिंग एसेट्स को हम एक्रूवल बेसिस मतलब अर्न के बेसिस पे, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को हम इंटरेस्ट रिसीव के बेसिस पे करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन जब आप स्टार्ट मेन, ये थ्योरी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये 7 मार्क्स का भी आएगा तो एक्सप्लेनेशन में कोई चेंज नहीं होगा, यही रहेगी एक्सप्लेनेशन, बस चाहे 5 मार्क्स का चाहे 7 मार्क्स का है। आपको ऊपर पहले परफॉर्मिंग एसेट्स का मीनिंग लिखना है, फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मीनिंग लिखने के बाद आप उसके अंदर ये 3 पार्ट डालने हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट, क्योंकि स्टैंडर्ड एसेट और परफॉर्मिंग एसेट तो एक ही हो गए। और फिर इसका प्रोविजन, प्रोविजन को थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि जनरली इतना मुश्किल आता नहीं है कि एग्रीकल्चर को दे रखा वो दे रखा, वो नॉर्मली पूछते हैं जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस पे वैसे जनरली आपको प्रैक्टिकल कम ही मिलता है, बट ऑन द सेफर साइड आई हैव इंसर्टेड वन दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेन क्वेश्चन हमारा उस पे ही आता है इनकम पे, बट आप ये वाला क्वेश्चन भी करके जाइएगा। इफ यू स्टिल फील देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी और कॉन्टैक्ट मी। फॉर दिस चैप्टर you have to do up to here only, there is nothing else you should follow in this chapter. If you still feel there is any doubt you can contact me. Thank you very much.